हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आपको तो ये मालूम ही होगा कि जो एडवर्ब्स है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, राइट? और दोस्तों, एडवर्ब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप उसे भी चेकआउट जरूर करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एडवर्ब्स है उसके साथ रिलेटेड ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप एडवर्ब्स यूज करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एडवर्ब से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये एडवर्ब क्या चीज है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी कि आपने ये तो सुना होगा कि दे आर स्लो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दे वॉक स्लोली, दे वॉक स्लोली, ये जो स्लो से स्लोली बन गया, तो स्लो तो था अपना एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने कहा दे आर स्लो। लेकिन जब मैंने कहा कि दे वॉक स्लोली, तो ये जो स्लोली है ये एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि उसने वॉक को क्वालिफाई किया, मतलब कि दे वॉक स्लोली। तो ये जो वॉक है, वॉक कैसे करते हैं कि क्या वो तेज वॉक कर रहे हैं या फिर वो स्लो वॉक कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने कहा स्लोली, तो वॉक को हमने क्वालिफाई किया। वॉक क्या है? वॉक एक वर्ब है, तो इसलिए दे वॉक स्लोली में जो स्लोली है वो है अपना एडवर्ब। और हमने क्या किया उसको एडवर्ब बनाने के लिए? हमने स्लो के बाद एल वाई लगा दिया, तो वो बन गया स्लोली। अब ऐसे काफी सारे एडवर्ब्स हैं जिनके एंड में अगर आप एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको शायद हम हमेशा ऐसे एल वाई से एडवर्ब नहीं बनाते, वो थोड़े यूनिक केसेस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वो सेंटेंसेस जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप एडवर्ब्स को यूज करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्टिंग विद द सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज वी डोंट dash run backwards. We don't usually run backwards. We don't usually run backwards. The dog ate his meal dash. The dog ate his meal greedily. The dog ate his meal greedily. During the summers, we prefer moving dash. During the summers, we prefer moving indoors. During the summers, we prefer moving indoors. The bicycle is moving dash. The bicycle is moving eastwards. The bicycle is moving eastwards. The siblings dash fight with each other. The siblings never fight with each other. The siblings never fight with each other. My friends dash attend the conference. My friends rarely attend the conference. My friends rarely attend the conference. Meera answered the question dash. Meera answered the question correctly. Meera answered the question correctly. The children go to the museum dash week. The children go to the museum every week. The children go to the museum every week. The woman sings dash. The woman sings nicely. The woman sings nicely. You must read the letter dash. You must read the letter carefully. You must read the letter carefully. I dash get messages from my friends. I often get messages from my friends. I often get messages from my friends. I dash wish I was more confident. I sometimes wish I was more confident. I sometimes wish I was more confident. You should read the letter dash. You should read the letter carefully. You should read the letter carefully. He dash goes to office at 10 a.m. He always goes to office at 10 a.m.
He always goes to office at 10 a.m. Since it is an important speech, you should speak dash. Since it is an important speech, you should speak clearly. You should speak clearly. Can I find dash a pair of slippers? Can I find anywhere a pair of slippers? Can I find anywhere a pair of slippers? Dash, I had a camera with me. Fortunately, I had a camera with me. Fortunately, I had a camera with me. You should walk dash since the roads are covered with snow. You should walk cautiously since the roads are covered with snow. You should walk cautiously since the roads are covered with snow. She dash searched for the keys in her bag. She frantically searched for the keys in her bag. She frantically searched for the keys in her bag. दोस्तों फ्रेंटिकली का मीनिंग क्या है? मतलब कि बहुत एंक्शियसली, मतलब ऐसे बहुत ही एक डर का माहौल होना, एक ऐसे अरे मेरी कीज गुम तो नहीं हो गई, ये जो ऐसे टाइप का जो माहौल होता है तब हम यूज करते हैं फ्रेंटिकली। मतलब कि ऐसे एकदम जल्दी जल्दी टेंशन के साथ वो ढूंढ रही है कीज, तब हम यूज करेंगे फ्रेंटिकली। She is serving at the hospital dash. She is serving at the hospital voluntarily. She is serving at the hospital voluntarily. हाय अगेन फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और इसके बाद एडवर्ब्स को यूज करते वक्त आपको कोई भी डाउट ना हो। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और इसके साथ साथ अगर आपको एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या कंफ्यूजन हो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई ट्राई टू सॉल्व देम एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं। टिल देन सी यू सून।